Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So firstly, I would like to briefly introduce myself. I am Tanu. I am pursuing BA Philosophy Honors from Delhi University and I am a cadet as well. I am doing NCC also. And today I'll be talking about the World Trade Organization. So let's get started and I'll be, switching my language. Like I'll be talking in English as well as in Hindi. I would like to begin with its introduction. So, some of you might be aware of the fact that WTO is an intergovernmental organization that regulates international trade. Okay, so some might be thinking, like, what does this term intergovernmental mean? Intergovernmental basically means that something which is conducted between two or more governments. Like in the WTO, there are some 25 observer governments, and the WTO is run by its member governments. All major decisions are made by membership as a whole, and either by ministers or by their ambassadors. Okay, so this was about intergovernmental, and the predecessor of the WTO was the GATT. The full form of GATT is General Agreement on Trade and Tariff, which was basically not an organization as such but an agreement. Okay, and the headquarter of WTO is in Geneva, Switzerland, and the current director general of the WTO is Ngozi Okonjo-Iweala. She's from Nigeria, and if you do not know, then she is the first woman and the first African to lead the organization, and she became the seventh director general on 1 March 2021. ओके, और इससे पहले डायरेक्टर जनरल जो थे हमारे 6th नंबर के वो थे रॉबर्ट अज़वेदो. ओके, तो उनका खत्म हो गया था 2021 में, और तब हमारी नगोजियो कोंजो इवेला डायरेक्टर जनरल बनी 1 मार्च 2021 को. So you should make a note of it. And the WTO officially came into being on 1 January 1995 under the Marrakesh Agreement, which was signed between 123 nations on 15 April 1994, and it replaced the General Agreement on Tariffs and Trade. We all know this, which commenced in 1948. Now the purposes of the WTO. So the main purpose of WTO is to ensure that global trade commences smoothly, freely and predictably. मेन एम WTO का ये है, जो हमारा ट्रेड होगा ना बिटवीन कंट्रीज, वो फ्री होगा, वो टैरिफ फ्री होगा. मतलब उस पे ना कोई टैक्सेस और ये सब नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर टैक्सेस और टैरिफ्स लगेंगे तो भैया डेवलपिंग कंट्रीज कैसे करेंगी ये ट्रेड. डेवलप्ड कंट्रीज को देख देख के ही ये हमारा WTO उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम के बाद बनाया गया था. ठीक है, उस टाइम पे सब डेवलप्ड नेशंस ने मिलकर सोचा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ट्रेड की देख रेख करे. ओके, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए. तो अब डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में डेवलप्ड कंट्रीज कैसे अच्छा सोच सकती हैं. ओके, वो तो क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वो अपने हिसाब का सोचेंगे. तो क्योंकि WTO को हम मानते हैं कि वो अनबायस्ड है, वो किसी अमीर गरीब में ऐसे कोई भेदभाव नहीं करता है, तो उसने ऐसा एक रिजाइम बनाया हुआ है, उसका एक ऐसा सिस्टम है कि जो ट्रेड होगा नेशंस के बीच में वो फ्री होगा, टैरिफ फ्री होगा, उस पर कोई टैक्सेस नहीं होंगे, ताकि सब नेशंस, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो कोई भी है, वो इजीली कर सके ट्रेड. ठीक है, सो WTO इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग गवर्नमेंट इन विच कंट्रीज कैन नॉट प्लेस arbitrary unreasonable restrictions on trade. ओके, सो अब जो ये डेवलप नेशंस है ना, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं कि भैया हम इतना वो करेंगे, इतना टैक्स रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा ज्यादातर क्या होता है इनके डिसीजन डेवलप नेशंस के, जो डेवलपिंग हमारी जो कंट्रीज हैं उनके फेवर में नहीं होते हैं. सो इसलिए WTO एक बहुत जरूरी ऑर्गेनाइजेशन है आज के समय में होनी.
So India has been a WTO member since 1 January 1995 and a member of GATT since 8 July 1948. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको एक लिख लेना चाहिए कहीं पे। और मेंबरशिप की अगर बात करें तो WTO में अभी करंट में 164 मेंबर्स हैं और 25 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। और 163rd मेंबर जो हमारा था वो था लाइबेरिया, जो कि 2016 में बना था। और हमारा 164th मेंबर था अफगानिस्तान, जो वो भी 2016 में ही बनाया गया था। सो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़। अब व्हाट वाज गैट, तो अब हमें मेन चीजें तो गैट के बारे में पता लग गई हैं, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट था बिटवीन 23 नेशंस और इट रिमेन्ड इन इफेक्ट अंटिल 1995 एंड देयर आफ्टर इट वाज कोलैप्स्ड एंड डब्ल्यूटीओ केम इनटू बीइंग। ओके, 1 जनवरी 1995 को हमारा डब्ल्यूटीओ बन गया था। तो ये सब हमें ऑलरेडी पता है। Now, the last and largest GATT round was the Uruguay round, which lasted from 1986 to 1994 and led to the WTO's creation. So ये चीज बहुत important है, ये हमें पता होनी चाहिए. Whereas GATT had mainly dealt with trade and goods, the WTO and its agreements now cover trade in services, in trade inventions, creations and designs. तो इसका मेन लूपहोल गैट का ये था कि ये अभी एग्जिस्टेंस में हमारी नहीं है और इसकी जगह WTO है, कि इसने सिर्फ टैरिफ्स ऑन गुड्स पे काम किया। इसने रिमूव किए टैरिफ सिर्फ गुड्स पे। व्हाट अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में इसने सोचा ही नहीं, इसलिए ये अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। नाउ WTO टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट गैट। Now, functions of WTO. So, it facilitates international trade through the removal of tariff barriers and provides greater market access to all member countries. तो ये तो मेन इसका मोटिव ही है ना भाई, कि जो भी मेंबर हैं इसके, चाहे वो भैया आपके डेवलप्ड हैं चाहे वो डेवलपिंग है, ये भेदभाव नहीं करेगा, ये इक्वली सबको रखेगा और सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, सबके पास एक्सेस है मार्केट का, सब लोग ट्रेड कर सकते हैं और इजीली वो भी फ्री कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और it establishes a rule based trading regime in which nations cannot, same thing जो अभी हमने जिसके बारे में बात की है, ये वही चीज यहाँ पे रिपीट हो गई है। Now the WTO is also responsible to increase production and trade of services and it ensures optimum utilizations of world resources. Now क्योंकि भैया अब अगर हमें ट्रेड कर रहे हैं, हम एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रेड कर रहे हैं। अब MNCs हैं हमारी जो सेटअप होंगी, अगर जैसे डेवलप्ड नेशन से कोई डेवलपिंग नेशन में जा रहा है तो MNC सेटअप होंगी, तो उसके लिए जगह चाहिए हमें। उसके लिए क्या होगा, एनवायरमेंट को हानि होगी, जगह चाहिए तो पेड़ काटे जाएंगे, उस जगह को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऐसा वो बन सके ताकि हमारी कंपनी चल सके। तो इससे क्या एक हमारा नुकसान हो रहा है कि हमारे एनवायरमेंट को हानि पहुंच रही है इसके कारण। ओके, सो इसका एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो रही है ये चीजें। नाउ देर आर सम 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो ये हम ये 6 ही हैं, ये 6 सेट है पूरा, तो ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम WTO के बारे में पढ़ रहे हैं। पर फिर भी मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। फर्स्ट इज टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, सेकेंड इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, एंड थर्ड इज टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, and fourth is to increase the transparency of decision making processes. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं भाई कि भैया खुद करे जा रहा है किसी को पता ही नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। Fifth is to cooperate with other major international economic institutions involved in global economic management, and sixth is to help developing countries benefit fully from the global trading system. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है। ओके, तो हम तो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि हम खुद डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं। तो हमारे लिए ही WTO काम कर रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फुल्ली बेनिफिट हो।
नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द WTO फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो साइड में पिक्चर है इसमें डिफरेंस है बिटवीन गैट एंड WTO। अब गैट क्या था? गैट वाज एडक था और प्रोविजनल था, बट नाउ WTO is permanent and GATT had contracting parties but WTO has members. GATT system allows existing domestic legislation to continue even if it violated GATT agreement. ओके ये सबसे बड़ा लूप होल था इसका, बट WTO डज नॉट परमिट दिस। फोर्थ इज गैट वॉज लेस पावरफुल, बहुत कम उसकी पावर थी, और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी कुछ इफेक्टिव उसका था नहीं। बट WTO क्या है? मोर पावरफुल है, और इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना वो भी बहुत सही है। तो इसलिए हमारा ये WTO अभी एग्जिस्टेंस में है। नाउ अगर किसी को नहीं पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है? एक लोग हैं वर्ल्ड में सब, वो एक साथ हो गए हैं। इससे क्या हो गया है? ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है? ग्लोबलाइजेशन टर्न्स वर्ल्ड इनटू अ स्मॉल विलेज। जो चीज अमेरिका में हो रही है हमें इजीली पता लग जाती है आज इंडिया में, थ्रू न्यूज़, थ्रू न्यूज़पेपर्स, है ना, थ्रू मैगजीन्स। जो चीज इंडिया में हो रही है वो वहां पता लग जाती है। कैसे हो रहा है? थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसमें क्या होता है कि हमें इजीली हम वहां के प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। आज हम घर में बैठे बैठे हम चाइना का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हम अपना US का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये थ्रू ग्लोबलाइजेशन हमारी ये चीजें हो रही हैं। तो इससे क्या होता है? ये है माइग्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, and adoption of each other's cultural beliefs, adoption of different eating habits. Like in India, people love to eat pizza and burger. In other countries, our South Indian food is famous. So what is this? This is called globalization. नाउ WTO और ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जो सेम चीज ग्लोबलाइजेशन करता है वही सेम चीज आपका WTO करता है। इतना पता लग गया है कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, WTO क्या करता है, तो अब इनका रिलेशन क्या है। तो WTO ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ बीइंग्स, goods and services, capital, technologies, or cultural practices all over the world. Okay, and one of the effects of globalization is that it promotes and increases interaction between different regions and population around the globe. So ये interaction easy कैसे हो पाएगा? ये हम बोल रहे हैं कि ये फ्री, हमारा ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ना ट्रेड हो रहा है हमारा। तो ट्रेड हो रहा है, अगर ट्रेड पे हमारे क्या बोलते हैं टैक्सेस लगा दिए जाए तो वो चीज तो हार्ड हो जाएगी। तो WTO ने क्या कर दिया है? WTO का काम है, उसका मेन एम ही यही है कि लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, उसको लिबरलाइज करना ताकि चीजें आसान हो पाए। ओके, and WTO establishes rules regarding international trade, as we already know. And the WTO also brings a wide range of economic sectors into the ambit of the global economy. Okay, through this now, through WTO's working, globalization is managed at world level from a trade perspective. So this is one way to see things. Now, it has been criticized that free trade benefits developed countries more than developing countries. So, the first criticism of WTO is that it is argued that developing countries need some trade protections to be able to develop new industries. कॉमन सी बात है। अब डेवलपिंग इसलिए है ना क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे उठाई गई है, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी। एंड फ्री ट्रेड से क्या होता है? इट ओनली अलाउज फॉरेन ओन्ड कंपनीज टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब फ्री ट्रेड है तो भैया जो अमीर है वो आ रहे हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और अपना उनका बेनिफिट हो रहा है ज्यादा। पर इससे क्या हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज को तो नुकसान हो रहा है ना, उनके रिसोर्सेज, उनका सब कुछ तो जा रहा है ऐसे ही।
तो इसलिए ये क्रिटिसाइज होता है। सेकंड है WTO हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनफेयर। इसको बोला जाता है कि अनफेयर है, इसका झुकाव ज्यादा डेवलप नेशंस की तरफ है, डेवलपिंग नेशंस के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी नीड्स को इग्नोर करता है। और थर्ड ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। ओके, ये अनडेमोक्रेटिक है, सबको नहीं लिया जाता है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कुछ को लिया जाता है। अब वो कुछ है आपके डेवलप्ड नेशन। सो ये इसका क्रिटिसिज्म है। और फ्री ट्रेड इग्नोर्स कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, लाइक इट इज आर्ग्यूड दैट इट्स स्ट्रक्चर इनेबल्स द रिचर कंट्रीज टू विन व्हाट दे डिजायर। जो उनको चाहिए वो कर लेते हैं इजीली, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। Now, some criticize the WTO for enabling the domination of multinational companies, which reduce cultural diversity, as I just said, and tend to swamp local industries and firms. अब अपने local जो industries हैं वो जा रही हैं इसके कारण, ये रीजन है। और ये मैंने कुछ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, या आपके करंट से रिलेटेड है, तो ये आप अपने आप से रीड कर सकते हैं। सो हमारा ये पीपीटी थी WTO पे, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी इसके बाद आई विल बी अपलोडिंग 1 वीडियो ऑन द MCQ so that you can practice as well. So